Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss a level 6 subject which is jurisprudence and legal theory, and I'm going to specifically discuss one of the key legal scholars, John Austin, who was considered the first positivist in English jurisprudence. And so my discussion is going to be specifically focusing on the theory of John Austin. नाउ एक बात आपने जहन में रखनी है कि मैंने इससे पहले एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बर्थ ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म को कवर किया था. सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो ऑलरेडी, सो मेक श्योर to watch that video. I'll post a link in the description, so do check that out because that video will explain how legal positivism came into existence, what is the difference between positivism and natural law, and then what were the events that took place that convinced the jurists to come up with a positive theory of law. And so we discussed the authors such as Thomas Hobbes, Jeremy Bentham. In today's lecture, our focus is going to be on John Austin. Now, as we start, we need to understand Austin's early life a bit, and because that will give us some sort of a hindsight of why Austin wrote in particular the theory in a more positivist manner, and why we even call his theory as a command theory of law. Now, you have to understand that he was a lawyer, and he before his law practice and before his study, he was a junior commission officer in the army. And so there's a lot of influence from his military background into the legal theory that he has developed. From 1818 to 1825, he practiced rather unsuccessfully at the Chancery Bar, and in 1926 he was teaching at the University College London. He founded it and he was appointed its first professor of jurisprudence. Austin's first lecture in 1928 was attended by several distinguished men, but he failed to attract students and resigned his chair in 1832. So you have to keep in mind that even when he was teaching at the University College of London, he wasn't very successful because his ideas a lot of people did not agree with. Perhaps at that time किसी को इतना idea ही नहीं था कि ये बंदा बात क्या कर रहा है. He got famous pretty late जब उसकी वाइफ ने ये सारा कुछ पब्लिश किया था, और जब वो उसकी डेथ के बाद ये जो publication आई, that is now referred as the province of jurisprudence determined. तो अब ये जो जॉन ऑस्टिन के जो लेक्चर्स थे जो उसने इनिशियली यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दिए, उनको कंपाइल किया गया और कंपाइल करके ये पब्लिकेशन बनती है. अच्छा जी, सो व्हाट इज पॉजिटिविज्म? ये बेसिकली हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इस चीज़ को. व्हाई? बिकॉज हमें एक कुछ बेसिक आइडियाज होने चाहिए एज वी स्टार्ट जॉन ऑस्टिन. पहली बात ये है, लीगल पॉजिटिविज्म इज अ थीसिस दैट द एग्जिस्टेंस एंड कंटेंट ऑफ लॉ डिपेंड्स ऑन सोशल फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इट्स मेरिट्स. तो ये एक सोशल फिनोमिनन के तौर पर लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, किसी मोरालिटी या कस्टम या डिविनिटी के थ्रू नहीं आ रहा. दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू बी कंट्रास्टेड विद द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, बिकॉज नेचुरल लॉ थीरीज जो हैं वो फोकस करती थी जस्टिस के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर. सिमिलरली बाद में हमने देखा कि डिविनिटी को किस तरह से इन्फ्यूज़ किया गया into the system of natural law theory. But legal positivism does not base law on divine commandments, reason, or human rights. As a historical matter, positivism arose in opposition to the classical natural theory, according to which there are necessary moral constraints on the content of law. So that's the very idea जो हम देखते हैं positivism के अंदर. इसमें the word positivism comes from the word poised, which means posed, and law is basically posed as a social phenomenon. That is the idea of legal positivism, जिसके ऊपर हमने जो थ्योरी की डेवलपमेंट थी वो हमने देखी कि the original idea came from Thomas Hobbes, who wrote the Leviathan after the bloody events that took place in the English Civil War. तो उसने जिस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए वो किताब लिखी थी, इट नेवर गॉट नेवर गॉट टू दैट एक्सटेंट. या इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हॉब्स का जो वर्क था दैट वाज एक्चुअली laying out the theory of law per se. Perhaps it was a best explanation of power, एंड उसके साथ जो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया को लेके आया, जिसमें उसने कहा कि एक समाजी माहिदा है जिसके तहत
जो है वो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, ना कि किसी मॉरल कंपस के तहत वो अपने फैसले करता है। तो उसके तर्ज पे उसने बेसिकली सॉवरन की जो एक इलिमिटेबल पावर थी उसको जस्टिफाई किया था। सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार था थॉमस हॉब्स का, कि जो सॉवरन है वो किसी भी तरह का लॉ बना सकता है, उसको उसने लिवाइथन के नाम से रेफर किया था। सो वो सारी बात जो थी वो बेसिकली आपको राइट एट द वेरी एंड ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर हमने देखा कि एक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर शिफ्ट आया, और वो शिफ्ट जो है वो हॉब्स की थ्योरी में नजर आता है। उसके बाद जर्मी बेंथम, जिसने इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 के अंदर जो उसने अपना वर्क लिखा, उसके अंदर उसने कमांड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। जर्मी बेंथम की जो कमांड थ्योरी थी, हमने अपनी पिछले लेक्चर में इस बात को कवर किया था कि उसमें कुछ डिफरेंसेस थे दैट ऑफ ऑस्टिन। जर्मी बेंथम के लिए मॉरल सैंक्शंस स्टिल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, इसी तरह जो उसका सॉवरन था वो भी इलिमिटेबल नहीं था। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ये था कि जर्मी बेंथम की जो कमांड थ्योरी थी इट नेवर गॉट पब्लिश्ड। सो उसकी वो फेमस होती ही 100 साल के बाद है, उसकी डेथ के बाद, और जब उसके मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड किए गए और उसके बाद उनको जो है एडिट करके एक बुक की फॉर्म दी गई। सो जर्मी बेंथम वाज द पर्सन जिसने ओरिजिनली कमांड थ्योरी दी थी। आप ये मत समझिएगा कि जॉन ऑस्टिन ने उसकी थ्योरी पर से कॉपी की। आई थिंक that would not be the right approach to say it, because jurisprudence का एक तर्ज है, एक तरीका है फिलोसफी का, जहां पर आप किसी से इंस्पिरेशन डिराइव करके अपनी थ्योरी क्रिएट करते हो। सो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है jurisprudence में टू डिराइव इंस्पिरेशंस। इनफैक्ट तमाम जितने भी ऑथर्स हैं, अगर हम जर्मी बेंथम की बात करें तो ही वॉज परहैप्स इंस्पायर्ड बाय हॉब्स। तो इस तरह ये कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं है, बेसिकली ये अपने आइडियाज़ हैं। तो हम जॉन ऑस्टिन को बिलखसूस पढ़ेंगे, जो उसकी किताब जिसका नाम आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, ये बुक जो है दैट कंप्राइजेस सम ऑफ द लेक्चर्स। आज हम उन लेक्चर्स के अंदर जो बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नाउ जॉन ऑस्टिन, he starts by explaining, I think the most powerful punchline of his lecture comes from the very first statement he makes. And he says the matter of jurisprudence is positive law, law simply and strictly so called, and law that is set by political superiors to political inferiors. तो ये इसकी एक थीसिस स्टेटमेंट की मानद है, यानी ये उसका वो फलसफा है जो उसकी कंक्लूसिव बात कर रहा है कि कानून का फलसफा जो है कि कानून क्या होता है और लोग कानून को क्यों मानते हैं। उसने ऑस्टिन ने उसको एक बात में ख़त्म किया कि कानून पॉजिटिव लॉ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिसमें एक पॉलिटिकल सुपीरियर ने पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए कुछ लॉज क्रिएट किए हुए हैं। According to Austin, the widest definition of law proper acceptable is that a rule laid down for a guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him. So ये भी एक बड़ा रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग है, और वो रिलेशनशिप वो ये बता रहा है कि आमतौर पर जब भी हम लफ्ज लॉ का जिक्र करते हैं तो ये नजर आता है कि एक इंसान ने इंसान के लिए कानून बनाया है, जिसमें एक इंसान के पास इस चीज की ताकत थी कि वो उसके लिए कानून बना सके। तो ऑस्टिन ने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ताकत को अपना जो है एपिसेंटर रखा है पूरी थ्योरी का। टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑस्टिन देन सेवर बिटवीन द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लॉ। सो इनिशियली अगर आप लेक्चर 1 रीड कर रहे होगे सो आप देखोगे कि वो सबसे पहले इसी पॉइंट को क्लियर करता है कि भाई अब मैं अपने लेक्चर का, क्योंकि मैंने एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपको पहले दे दी है कि मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पॉजिटिव लॉ है, अब मुझे ये बताना बड़ा जरूरी है कि और कौन कौन सी वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं लॉ के अंदर। सो उनको वो एक्सप्लेन करता है। अब अगर आप ये चार्ट देखें तो ये चार्ट उस पूरी डिस्कशन को बहुत अच्छे तरीके से समराइज करता है। वो बहुत ही लिंग्विस्टिकली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है ऑस्टिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो सबसे पहले जो बाइफर्केशन करता है वो कहता है कि लॉ दो तरह का होता है। एक वो लॉ है दैट इज सेट टू मैन बाय गॉड, ठीक जी, ये तो डिवाइन लॉ है, नेचुरल लॉ हम इसको कहते हैं। और ये यहां पर इस बात का भी जिक्र करता है कि अक्सर लोग नेचुरल लॉ को कंफ्यूज करते हैं बाकी और चीजों के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। नेचुरल लॉ प्योरली डिवाइन लॉ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ऑस्टिन क्यों इसको लॉ कह रहा है? वो इसलिए इसको लॉ कहता है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि गॉड इज सुपीरियर, एंड इसी वजह से सुपीरियर एक इंफीरियर के लिए लॉ बना रहे हैं तो इसको वो लॉ रेफर करने में उसके लिए कोई मसला नहीं है। और वो ये भी अंडरस्टैंड करता है कि इसमें डेफिनेटली सैंक्शंस भी हैं,
यानी लॉ ऑफ गॉड की जो सैंक्शंस हैं वो यहां पर तो नहीं है, लेकिन इन दी हेयर आफ्टर डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करेंगी। बट इसके साथ साथ वो ये भी लेटर ऑन जाके बता देता है कि ये मेरा मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, ये नहीं है मेरा फलसफा कानून। क्यों? बिकॉज वो खुद बताता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ लॉ है। इसके अंदर सिर्फ हमारे से रिलेटेड यानी मेरे और आपसे रिलेटेड लॉज मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें तो लॉ ऑफ डिके भी है, इसमें तो लॉ ऑफ बर्थ भी है, इसमें तो पूरे यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो तमाम जो कवानीन के तहत चल रहा है वो सब कुछ इसमें आ जाता है। तो कहता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है कि इसको एक तरह से डिफाइन करना ही इम्पॉसिबल टास्क है। A lot of student gets confused कि भी ऑस्टिन जब एक सेकुलर थ्योरी दे रहा था तो शायद मे बी ही वाज बीइंग एन एथियस्ट। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ऑस्टिन क्लियरली वाज रिकॉग्नाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड, द अथॉरिटी ऑफ गॉड टू मेक लॉज। इसको भी ऊपर कोई डिनाइल नहीं है, उसको वो ना चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे लिए जो अप्रोप्रिएट प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो उन कवानीन के ऊपर है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचुरल लॉ, वो उन कवानीन के ऊपर है जो कि लॉ मेड बाय मेन फॉर मेन है, यानी इंसान ने इंसान के लिए बनाए। अब आपको एक बात जहन में रखनी है कि नेचुरल लॉ की जो पहले डेफिनेशन हमने देखी थी, जो हम क्लासिकल फॉर्मेट के अंदर पढ़ते हैं, उसमें हमने देखा था कि नेचुरल लॉ इंक्लूड्स और इट इज प्राइमरीली अ थ्योरी ऑफ मोरालिटी बट इट इंक्लूड्स डिविनिटी। इसने इस चीज को मोरालिटी को तो किया साइड पे, उसने कहा ये मोरालिटी कभी भी गॉड की तरफ से नहीं आ रही, ये मोरालिटी तो इंसान ने क्रिएट की हुई है। अब वो कहता है कि ये जो इंसान ने लॉज बनाए हैं ना, ये दो टाइप के फर्दर है। सो अगर आप इसको यहां पर अब स्क्रीन को देखो तो उस पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि लॉज दैट आर प्रॉपरली सो कॉल्ड आर द फर्स्ट वंस दैट आर क्रिएटेड बाय मेन फॉर मेन एंड दैट आर बेसिकली पॉजिटिव लॉज। और यहां पर इसकी वो एक्सप्लेनेशन दे देता है, कहता है दीज आर लॉज दैट आर मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू बाइंड एंड ऑब्लाइज political inferiors, and one of the essential characteristics he says is that positive law does have sanctions। तो ये एक तो सुपीरियर ने बनाए हैं एक किसी पॉलिटिकली इंफीरियर इंसान के लिए, और दूसरा इसमें सजाएं मौजूद हैं। तो ये जो है दर हकीकत प्रॉपरली लॉज हैं, इनको लॉज हम प्रॉपर कह सकते हैं बिकॉज इनको प्रॉपर फॉर्मेट में एक हायरार्की में क्रिएट किया गया है। और फिर कहता है कि इंसान ने बहुत सी और चीजें भी क्रिएट की हैं, दे आर कॉल्ड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, और इनको हमें पॉजिटिव लॉज बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, इनको हमें पॉजिटिव मोरालिटी कहना चाहिए। और खुद ही एक्सप्लेन करता है क्यों पॉजिटिव मोरालिटी। कहता है पॉजिटिव इसलिए बिकॉज बनाए इंसान ने है, कहीं ऊपर से नहीं आए, कहीं डिवाइन सोर्स से नहीं आए, बनाए इंसान ने है, लेकिन इसमें ना तो कोई हायरार्की है, ना कोई सुपरियॉरिटी या इंफीरियरिटी का जिक्र नजर आता है, और ना ही इसमें सैंक्शंस हैं, बल्कि पॉजिटिव मोरालिटी की जो इन्फोर्समेंट है वो तो बाय मेयर ओपिनियन या सेंटिमेंट के थ्रू है। तो वो तो उसको तो इन्फोर्स ही ये चीजें कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल भी देते हैं, जैसे लॉज ऑफ ऑनर है, लॉ ऑफ फैशन है, कस्टमरी लॉ है, हत्ता कि लेटर ऑन हम बाद में जाके देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ को भी बेसिकली पॉजिटिव मोरालिटी समझता है, बिकॉज उसमें भी सुपरियॉरिटी और इंफीरियरिटी का रिलेशनशिप नहीं है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी ऑस्टिन जो है वो पॉजिटिव मोरालिटी समझता है, बिकॉज उसके अंदर भी सैंक्शन कोई नहीं है, और सॉवरन अपने लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना रहा होता है। सो ही डज नॉट कंसिडर दैट प्योरली इशू ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब जब उसने ये डिमार्केशन कर ली है तो उसने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है जनाबे वाला, पॉजिटिव लॉ। तो अब वो कहता है कि मेरी थ्योरी में जो प्राइमरी चीज डिस्कस होगी वो ये पॉजिटिव लॉ डिस्कस होगा। नाउ अगेन मैं इसको आपके सामने दोबारा एक समराइज फैशन में दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉ सेट बाय मैन टू गॉड इज बेसिकली नेचुरल लॉ। उसने उस मॉरलिटी की चीज को साइड पर कर दिया। लॉ मेड बाय मैन फॉर मैन बेसिकली प्रॉपर लॉज हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉ, जो कि पोजीशन के थ्रू बने हैं। लॉ बाय पोजीशन है, यानी एक पॉलिटिकल सुपीरियर ने पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए बनाए हैं जिसमें सैंक्शंस मौजूद हैं। और फिर इम्प्रॉपर लॉज हैं जिनको हम पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं। अब इस पूरी बाइफर्केशन के बाद ही मूव्स ऑन टू डिस्कस अबाउट हिज पॉजिटिव लॉज। नाउ व्हाट इज अ लॉ फॉर ऑस्टिन, क्योंकि जिसने उसने बता दिया कि हर लॉ बेसिकली पॉजिटिव लॉ है, जो कि जिसका मैं जिक्र करूंगा। अब उसके पहले वाले जो टाइप्स उसने बताई अब मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। तो बेसिकली
अब ये वो डेफिनेशन दे रहा है कि पॉजिटिव लॉ दर हकीकत क्या होता है। सो यहां पर वो कहता है दैट एवरी लॉ और रूल इज अ कमांड, रादर लॉज और रूल्स प्रॉपर्ली सो कॉल्ड आर स्पीसीज ऑफ कमांड। बेसिकली हर कानून जो है वो एक कमांड है, बल्कि तमाम लॉज या वो तमाम की तमाम रूल्स जो हैं वो कमांड्स की ही फॉर्म है। अब फिर कमांड क्या चीज है, दैट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड। कहते हैं इफ यू एक्सप्रेस or intimate a wish, if you express or intimate a wish that I shall do or forbear for some act, and if you will visit me with an evil in case I comply not with your wish, the expression or intimation of your wish is a command. Command is distinguished from other signification of desire not by the style in which it is signified, but by the power of the party commanding to inflict an evil or pain in case of non-compliance. Now this is the most interesting way that Austin has used to define command. वो कहता है कि ख्वाहिश है, it's an expression of a wish or a desire for you to do or not to do something. आपको कुछ करना या नहीं करना, उसके लिए एक ख्वाहिश का इजहार है। अब जब वो ये साथ बात करता है, लेकिन ख्वाहिशें तो हमारी बहुत सी होती हैं, मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशें होंगी, आपकी भी बहुत सी ख्वाहिशें होंगी, क्या हर ख्वाहिश एक कमांड है? कहता है नहीं। ख्वाहिश और डिजायर या विश जो है उसको हमने डिस्टिंग्विश करना है किस बात से, कि उसके अंदर जो पावर है टू इन्फ्लिक्ट हार्म और टू इन्फ्लिक्ट इवल, टू कंपेल समवन, टू कोर्स समवन, टू कंप्लाई समवन, टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल, वो जो ताकत है वो बेसिकली उस ख्वाहिश को कमांड में तब्दील कर देती है। तो जैसे मैंने आपके साथ शुरू वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ऑस्टिन के लिए सैंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थ्रू आउट, आप अगर इसकी थ्योरी में देखते हो, और सैंक्शन के साथ उसने जो पावर को एसोसिएट किया है कि ताकत भी होनी चाहिए सैंक्शन को लगाने की, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डॉगमा उसने प्रेजेंट किया है अपनी थ्योरी के अंदर, अपने एनालिसिस के अंदर। तो दर हकीकत समराइज करते हैं, कमांड क्या चीज है? कमांड एक ख्वाहिश का नाम है जिसके साथ आपके पास इस चीज की ताकत भी हो कि आप सैंक्शन लगा सको। द वर्ड ही इज यूजिंग इन केस इफ यू विल विजिट मी विद evil, तो ये जो evil का जिक्र कर रहा है, दिस evil जिसका ये बार बार बात कर रहा है, दिस वन इज बेसिकली द सैंक्शन ही इज टॉकिंग अबाउट। सो कमांड एंड सैंक्शन आर देयरफॉर इंटर रिलेटेड। ये आपस में ये दो चीजें हैं ऐसी हैं कि जो एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जहां भी कमांड होगी वहां पे ड्यूटी होगी, और ड्यूटी के साथ सैंक्शन बेसिकली प्लेस की गई होगी। सो अब मैं इसी से रिलेटेड जो इसका दूसरा टेनेंट है इस थ्योरी का, उसके बारे में बात करता हूं। दूसरा लिम्ब आप इसको कह सकते हो, इसका दूसरा पिलर कह सकते हो, और दैट इज सैंक्शन, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर रहा हूं कि कमांड को जो चीज कमांड बनाती है दैट इज बेसिकली सैंक्शन। अ कमांड देन इज अ सिग्निफिकेशन ऑफ अ डिजायर, बट कमांड इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम other signification of desire by the peculiarity that the party to whom it is intended is liable to the evil from the other in case he complies not with the desire. According to Austin, a sanction can be the smallest chance of incurring the smallest evil. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। So अगर आप इस पॉइंट को देखो तो वो कहता है कि सजा क्या है, सैंक्शन क्या है। Now a lot of you are confused on that point कि यार ऑस्टिन के लिए सैंक्शन क्या चीज है? क्या फिजिकल किसी को जेल में डालना, किसी को मार देना, किसी को सजाए मौत देना? नहीं, वो कहता है द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ इनकरिंग द स्लाइटेस्ट इविल। दैट मींस कि नलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है और वो नल एंड वॉइड हो जाता है, उसमें आपको डैमेजेस देने पड़ जाते हैं, तो breach of the contract in itself is a sanction that will compel people to follow that very contract. इसी तरह जो भी उस पर्टिकुलर लॉ की रिpercussion होगी वो बेसिकली सैंक्शन के तौर पर सामने आ सकती है। तो हम कतई तौर पर ये ना समझें कि ऑस्टिन की सैंक्शन जो है वो बहुत ही नैरोली डिफाइन की है। उसने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड पनिशमेंट, बिकॉज पनिशमेंट एक नैरो स्टेटमेंट है। पनिशमेंट के अंदर बहुत लिमिटेड सी चीजें आती हैं, सैंक्शन के अंदर बहुत ज्यादा सी चीजें आ सकती हैं। इसी तरह लॉज मस्ट बी फॉलोड बाय सैंक्शन इवन इफ देयर इज नो सोशल नीड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कर दी कि भाई अगर कोई सोशल जरूरत नहीं भी है, कस्टम नहीं भी है, रिवाज नहीं भी है, आपको अच्छा लगता है, लॉ नहीं अच्छा लगता, डजंट मैटर, सजा उसकी कंपेल करेगी, उसकी सैंक्शन उसकी कंपेल करेगी कि आपने उसको फॉलो करना है कि नहीं करना। इसी के साथ लेक्चर 1 के अंदर ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस करता है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरियॉरिटी। क्योंकि जिस तरह ऑस्टिन ने बोला कि लॉ इज सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू बाइंड एंड ओब्लाइज पॉलिटिकल इंफीरियर्स, तो सुपरियॉरिटी को लेक्चर 1 में हमें समझना बड़ा जरूरी है। ये बात भी जहन में रखें कि जो आपको स्लाइड्स के ऊपर इस वक्त जो स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, दे आर बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज लेक्चर्स। तो ये सारी कोटेशंस हैं
Law and commands are set to proceed from superiors to bind and oblige inferiors. Now I want you to focus on this word. एक तो superior तो है ही है, अभी हम इस particular slide में superiority को discuss कर रहे हैं डिटेल में, but I want you to notice that how particularly Austin is using the word oblige, because this is important for us to highlight. हम later on जाके पढ़ेंगे कि हार्ट का जो major objection था ऑस्टिनियन थ्योरी से, वो यही था कि ये क्योंकि एक्सटर्नल एस्पेक्ट से लिखी गई है, इसके अंदर ऑब्लाइज किया गया है, मजबूरी के तहत आपको लॉ मनवाया गया है, कंपल्शन है, तो इस थ्योरी के अंदर कुछ फ्लॉज हैं। ये तो हम उस वक्त असेस करेंगे कि क्या ये थ्योरी फ्लॉड थी या हार्ट की थ्योरी फ्लॉड होगी या नहीं होगी, ये तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। बट यहां पर ऑस्टिन एक लफ्ज और भी इस्तेमाल कर सकता था, दैट कुड हैव बीन ऑब्लिगेशन, बट आई थिंक ऑस्टिन वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वर्ड्स। उसने ये रियलाइज किया कि जो लोग हैं दे आर कंपेल्ड, उनको कोई चॉइस नहीं है, उनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको कोई पसंद नहीं है लॉ। हो सकता है कुछ को हो सकता है कुछ को ना हो, लेकिन ही वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ ऑब्लाइजिंग पीपल following the law. Now as I said earlier, because हम तो superiority की बात कर रहे हैं, law is coming from superior, so एक superior कौन है? Now this is an important point. Superiority is often synonymous with precedence or excellence. जाहिर है हम जब भी superior की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन दूसरे से बेहतर है. We talk of superior in rank, superiors in wealth, or superiors in virtue, comparing certain person with other certain persons and meaning that the former precede or excels in later in rank or in wealth or in virtue. तो जब हमने एक किसी को superior समझना है तो हमने देखना है कि किस चीज से आप superior हो, किस तनाजुर में आप superior हो. लेकिन जब वो कहता है कि जब हम बात करते हैं ना इस सुपरियॉरिटी की जो सुपीरियर एलिजिबल है लॉ मेक करने का, तो यहां पर वो एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मेक करता है लेक्चर 1 में, एंड ही सेज दैट द टर्म सुपरियॉरिटी सिग्निफाइज माइट. सो बेसिकली सुपीरियर वो है जिसके पास ताकत है. माइट क्या है? ताकत, बेसिकली पावर. Might of what? The power of affecting others with evil and pain, and through them forcing through fear of that evil to fashion their conduct towards one's wishes. Now this is very interesting. Why? Because ये कह रहा है ताकतवर बेसिकली कौन है, वो कौन है जिसको हम कानून में सुपीरियर मानेंगे. खुद ही जवाब देता है कि भाई ताकतवर वो है जिसके पास ताकत है, जिसके पास इस चीज का इख्तियार है, पावर है कि वो दूसरे को मजबूर कर सके, उस सैंक्शन को लगा के, उस ईवल और पेन को इस्तेमाल करके, और उसके बाद उनको मजबूर करे कि वो अपनी जो कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट है उसको उस बंदे के मुताबिक ढाल ले. अच्छा, फिर यहां पर एक और उसने लेक्चर 1 के अंदर ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया जो काफी डिबेटेबल टॉपिक है और जिसके अंदर काफी ज्यादा डिस्कोर्स क्रिएट होता है. ऑल्दो कि ऑस्टिन को बाद में जाके जो उसने सॉवरेनिटी का जिक्र किया है वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है, बट एज फार एज दिस पॉइंट आई थिंक इन माय ओन ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ही मेक्स अबाउट अ सुपीरियर, and if we can also reiterate that point to a sovereign as well. वो कहते हैं the might or superiority of God is सिंपल और एब्सोल्यूट. इसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो गॉड को पहले ही उसने एक्सेप्ट कर लिया. उसने कहा जो सुपरियॉरिटी गॉड की है वो एब्सोल्यूट है, उसमें देयर इज नो टू ओपिनियन ऑन दैट. बट इन ऑल और मोस्ट केसेस ऑफ ह्यूमन सुपरियॉरिटी the relationship of superior and inferior and the relationship of inferior and superior are reciprocal. यानी कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पर सुपीरियर है वो किसी दूसरे टाइम पर इंफीरियर भी हो सकता है. अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, यानी कि सुपीरियर किसी और का भी इंफीरियर हो सकता है. यानी फॉर एग्जांपल एक जज है तो जज अपनी कैपेसिटी में तो सुपीरियर के मानद बैठा हुआ है बिकॉज उसके पास ये ताकत है, लेकिन पार्लियामेंट के सामने वो एक इंफीरियर है. और इसका अगर मैं दूसरा मीनिंग निकालूं तो शायद यहां पर मे बी आप लोगों का, यानी मेरा और आपका जिक्र हो रहा है, अवाम का जिक्र हो रहा है कि जो इंफीरियर्स हैं हम लोग हैं, हम लोग एक सर्टेन टाइम पर सुपरियॉरिटी रखते हैं. खास तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास जब हम वोट कास्ट करते हैं तो हम लोग मे बी उस सुपीरियर जो कि पार्लियामेंट है उसको चूज करने में एक उसका एक बड़ा अहम किरदार हम लोग प्ले करते हैं. देयरफॉर हो सकता है कि उसका जो इसका दर हकीकत कहने का मकसद था वो ये भी हो सकता है कि असल ताकत तो चेंज होती रह रही है. यानी सुपीरियर जो है एक अगर पर्टिकुलर टाइम पर वो
अपने इंफीरियर को बाउंड कर रहा है, तो वही इंफीरियर किसी एक और कॉन्टेक्स्ट में किसी और टाइम पर सुपीरियर भी हो सकता है. और चेंजिंग द एक्सप्रेशन द पार्टी हु इज द सुपीरियर एज व्यूड फ्रॉम वन एस्पेक्ट इज द इंफीरियर व्यूड फ्रॉम एन अदर एस्पेक्ट. सो ये जो रेसिप्रोसिटी ऑफ इंफेरिटी एंड सुपरियॉरिटी ऑस्टिन ने क्रिएट किया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो उसने लेक्चर 1 के अंदर ही ले आउट किया है. इसी तरह लेक्चर 1 के एंड पे वो बेसिकली कस्टमरी लॉज की बात करता है. नाउ ऑस्टिन इज नॉट फॉन्ड ऑफ कस्टमरी लॉज. वो कस्टमरी लॉज को पहले ही बता चुका है कि वो तो पॉजिटिव मोरालिटी है, वो तो हमारे तरीके हैं, सोशल नॉर्म्स हैं जो कि सोसाइटी ने अडाप्ट किए हुए हैं, और अगर उनको कोई तोड़ता है, उन कस्टम्स को, कोई रिवाजों को तोड़ता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ का रिवाज है और वो नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता, तो उससे तो मेरे सेंटिमेंट्स या क्रिटिसिज्म उसको इन्फोर्स करा रहे होंगे. लोग उसको क्या कहेंगे, वो क्रिटिसिज्म की वजह से शायद वो फॉलो कर रहा हो. और ऑस्टिन के लिए वो तो मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ही नहीं है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव लॉ ही नहीं है. लेकिन यहां पर ऑस्टिन ये जिक्र करता है कि कस्टम्स को भी पॉजिटिव लॉ बनाने का एक तरीका है. और वो तरीका क्या है? कस्टम इज ट्रांसम्यूटेड इनटू पॉजिटिव लॉ व्हेन इट इज अडॉप्टेड as such by the courts of justice and when the judicial decisions fashioned upon its are enforced by power of the state. So basically ऑस्टिन ये कह रहा है कि कस्टम्स को भी पॉजिटिव लॉ बनाया जा सकता है. कैसे बनाया जा सकता है? जब वही कस्टम्स अदालतों के अंदर जुडिशियल डिसीजंस का पार्ट बन जाते हैं. सो अगर कोई जज जो है वो किसी कस्टम को फॉलो करके उसको अपनी जजमेंट में ले आता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन वो एक पॉजिटिव लॉ बन सकता है. Why? Because now they are clothed with legal sanction. Again, जो इसका एम्फेसिस है वो उस सजा के ऊपर है, उस लीगल सैंक्शन के ऊपर है जिसको कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है. इट इज मेयरली अ रूल ऑफ, इट वाज मेयरली अ रूल ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी. पहले तो वो पॉजिटिव मोरालिटी था लेकिन जब आपने उसको लीगल सैंक्शन के साथ अदालत के थ्रू क्लोथ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ पॉजिटिव लॉ. अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबॉर्डिनेट और अ जज इज मेयरली अ मिनिस्टर ऑफ द सॉवरन. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो जजेस हैं दे आर कमिंग अंडर द सॉवरन. अब सॉवरन इट कुड बी अ मोनार्क, इट कुड बी अ पार्लियामेंट, व्हाटएवर इट इज. बट जो जजेस हैं वो बेसिकली एक सबॉर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं, एक उसके सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं. और ये जब सब्जेक्ट जजेस यानी वो मुताहिद अदालतें जब किसी कस्टम को अपने लॉ में ट्रांसम्यूट कर देती हैं, उसको कन्वर्ट कर देती हैं और उसमें लीगल सैंक्शंस ले आती हैं, तो सॉवरन की वो एक टैसिट कमांड बन जाता है. टैसिट यानी अब सॉवरन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, सॉवरन उसको चेंज भी कर सकता है. नाउ इन दिस रिगार्ड आपके सामने एक इंटरेस्टिंग केस रख देते हैं. आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर फर्स्ट ईयर में, एंड दैट इज आर वर्सेस आर. नाउ दिस इज अ मैरिटल रेप केस जिसमें हमने देखा था कि 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मैरिटल रेप को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया कॉन्ट्री टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ. नाउ जब हाउस ऑफ लॉर्ड विच आर सब्जेक्ट जजेस, जिसको ऑस्टिन की जुबान में अगर हम बोलें तो वो तो सब्जेक्ट जजेस हैं. सब्जेक्ट जजेस ने जब एक नए रिवाज के मुताबिक मैरिटल रेप का जो पुरानी डेफिनेशन थी उसको रिडंडेंट कर दिया और नई डेफिनेशन के मुताबिक इस ऑफेंस को क्रिएट कर दिया और जिसके अंदर लीगल सैंक्शन भी है, तो क्लियरली यहां पर पॉजिटिव लॉ एक कस्टम से डिराइव होता दिखाई दे रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि आज दिन तक उसको सॉवरन ने यानी पार्लियामेंट, जो क्राउन इन पार्लियामेंट है, उसने छेड़ा नहीं है. सो क्लियरली दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑस्टिन इज बेसिकली ट्राइंग टू पॉइंट आउट हियर कि अब ऐसे जाहिर लगता है कि पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर लॉ को इंडोर्स कर बैठी हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि जो कॉमन लॉ है. लेकिन इफ द पार्लियामेंट वाज डिसएग्रीइंग विद दैट लॉ, तो वो एक नया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाते एंड दे कुड हैव सिंपली चेंज्ड व्हाटएवर द हाउस ऑफ लॉर्ड हैज क्रिएटेड एज अ मैटर ऑफ लॉ. तो बिकॉज वो उससे टैसिटली यानी इंप्लाइडली अग्री कर रहे हैं, सो क्लियरली दैट इज नाउ द इशू ऑफ पॉजिटिव लॉ. Now, in lecture 5, this is where he begins lecture 5, and he first starts with the authors of positive law. So basically, ऑस्टिन के लिए positive law के 3 authors हैं. सबसे पहले monarch या sovereign member जो भी उसमें आता है, it could be like a parliament or it could be the monarch, it could be a president, it could be a dictator, whatever might be, whoever is the political superior or the sovereign. So जो पहला author है law का वो दर हकीकत sovereign खुद होता है, वो खुद से commands देता है और उन commands के अंदर sanctions होती हैं. It could be an act of parliament or so forth, जिस तरह भी है. It could be a royal decree in some of the
स्टेट्स जहाँ पर अभी तक जो है वो एक इम्पीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर मौजूद है तो इसी तरह अगर दूसरी बात की जाए, दूसरे ऑथर्स हैं वो तमाम सबॉर्डिनेट सब्जेक्ट्स जो कि जज के तौर पर या तो काम कर रहे हैं या मिनिस्टर्स हैं ऑफ दैट पॉलिटिकल सुपीरियर, तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जुडिशल लॉ मेकिंग का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो दो लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका जिक्र हो चुका है, पहला मोनार्क खुद, और उसके नीचे जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रही है या जो जुडिशल प्रेसिडेंट क्रिएट हो रही है, that is also covered in that, so that is the second author। एक थर्ड ऑथर जो है पॉजिटिव लॉ का, वो सब्जेक्ट्स हैं एज प्राइवेट पर्सन्स, और ये लोग भी जो है वो अपने लीगल राइट्स को परस्यू करने के लिए पॉजिटिव लॉज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो मैं किसी को कंपेल कर रहा हूं कि वो उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर बाउंड होगा, और क्योंकि उसके अंदर सैंक्शन भी मौजूद है, तो आई बीइंग एन ऑथर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्लियरली मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज करते हुए वो चीज एज अ मैटर ऑफ पॉजिटिव लॉ बनाई है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट जो कि उसने अंडर द लेक्चर 5 एक्सप्लेन किया है। नाउ अनदर पॉइंट जो लेक्चर 5 का मेन क्रक्स है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू द सोर्स ऑफ लॉ। ऑस्टिन के मुताबिक हर पॉजिटिव लॉ एक डिटर्मिनेट सोर्स से फ्लो कर रहा है, उसका एक फाउंटेन है, उसका एक ओरिजिन है जो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कहां से आया। एंड सो एवरी पॉजिटिव लॉ और लॉ प्रॉपर इज properly so called flows for or follows from a determinate source। Positive morality however does not flow from a source। तो positive morality में एक डिफरेंस तो यही आ गया कि उसका कोई सोर्स नहीं है। सो फॉर एग्जांपल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, हम बता सकते हैं वो कब बना था, किस पार्लियामेंट ने बनाया था, बेशक वो एक 18वीं सदी का एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो, 19वीं सदी का क्यों ना हो, वी वुड नो द सोर्स कहां से आया। इसी तरह जुडिशल प्रेसिडेंट का भी सोर्स हम बता सकते हैं, किसने बनाया, कब बनाया, टाइम क्या था, किस वक्त ये बना, सारा कुछ आप पॉइंट आउट कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव मोरालिटी ऑस्टिन के मुताबिक आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उसका कोई सोर्स नहीं है। लेकिन वो खुद फिर इस बात का जिक्र करता है कि पॉजिटिव मोरालिटी भी दो तरह की होती है, एक प्रॉपर पॉजिटिव मोरालिटी है और एक इम्प्रॉपर पॉजिटिव मोरालिटी है। जब हम प्रॉपर पॉजिटिव मोरालिटी की बात करते हैं तो ये बात जहन में रखें कि अब इसमें सैंक्शंस तो कोई नहीं है, इसमें सुपरियॉरिटी और इंफीरियरिटी तो कोई नहीं है, लेकिन इसका सोर्स जरूर होगा। दिस इज व्हाई ही वुड कॉल इट प्रॉपर पॉजिटिव मोरालिटी। तो इसका सोर्स जरूर है। फॉर एग्जांपल अगर आज हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ according to Austin would be a proper positive morality। Why? Because it does have a source, it simply does not have sanction or the relationship of superiority and inferiority, therefore we are not classifying it as पॉजिटिव लॉ। इसी तरह अगर हम इम्प्रॉपर पॉजिटिव की बात करें तो इसमें तो आपके पास देयर इज नो सोर्स एज वेल, आपके पास ना तो सोर्स है ना ही सैंक्शन है। इसमें तो मेयरली इन ओपिनियंस हैं, या आप जिस तरह कह लो कि मेयरली आपके सामने सिर्फ उसके सेंटिमेंट्स की बेसिस पे इन्फोर्स किया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल कस्टम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन वुड बी इम्प्रॉपर पॉजिटिव मोरालिटी इवन टुडे, जिसका ना तो कोई सोर्स है ना कोई उसकी सैंक्शन प्रॉपरली उस तरह से डिफाइंड है। सो उसने अब इस फर्दर पॉजिटिव मोरालिटी को भी, इस पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह लेक्चर नंबर 6 के अंदर ऑस्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने जो थर्ड एंड फोर्थ पिलर का जिक्र करता है। आई थिंक जो 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ऑस्टिन की थ्योरी खड़ी है उसका जिक्र करता है, एंड दैट इज विद रिगार्ड्स टू द एरिया ऑफ सॉवरन। तो ऑस्टिन ने ये बताया कि दर हकीकत कमांड जो है वो एक सॉवरन देता है, और कमांड के अंदर आपको पता है सैंक्शन होना बड़ी जरूरी है। तो ये सॉवरन कौन है बेसिकली वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्सप्लेन करता है। ऑस्टिन इन दिस चैप्टर सीक्स टू एक्सप्लेन द मार्क व्हिच डिस्टिंग्विश पॉजिटिव लॉ, एंड फॉर दिस पर्पस ही सीक्स टू एनालाइज द एक्सप्रेशन ऑफ सॉवरेनिटी, द कोरिलेटिव एक्सप्रेशन सब्जेक्शन, एंड इनसेपरेबल कनेक्टेड एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। सो ये आपस में तीनों चीजें कनेक्टेड है। तो कि सॉवरेनिटी क्या है, सब्जेक्शन क्या है, कौन उसका सब्जेक्ट होगा, और तीसरी चीज कि वो सॉवरन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या आया, सॉवरन है भी या नहीं है। अगेन दैट बेसिकली ये तीनों इंक्वायरीज इस पर्टिकुलर इसमें चैप्टर में करता है। अब वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोलता है यहां से आगे, वो कहते हैं एवरी पॉजिटिव लॉ और एवरी लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड इज सेट बाय अ सॉवरन पर्सन। आपको नहीं लगता कि यहां पर थोड़ा सा इसकी जो पिछली लेक्चर 1 के अंदर डिस्कशन थी उसके अंदर थोड़ी सी डिविएशन आ गई है, बिकॉज हम देख रहे हैं
कि वहां पर उसने कहा था कि कमांड इज गिवन बाय अ सुपीरियर। यहां पर ये सॉवरन पर्सन का जिक्र कर रहा है इन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। तो ये समझता है कि जो लॉ बनाने का इख्तियार है वो एक सॉवरन के पास है, or the sovereign body of persons or to a member of members of an independent political society wherein that person or body is a sovereign or supreme। so जहां पर वो बॉडी जो है सॉवरन और सुप्रीम है, ये याद रखें। जिस तरह फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, जब पाकिस्तान और इंडिया सेवर नहीं हुआ था, अलहदा नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस दोनों कंट्रीज की नहीं थी, तो वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ रहे थे और जो उसका सॉवरन था, बेसिक यहाँ पर कोई लॉज बन रहे थे, यहाँ पर कोई सो कॉल्ड, आपने देखा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है 1937 में, वो सब कुछ हुआ, बट जो रियल सॉवरन होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जिस वक्त हम उसको सब कॉन्टिनेंट कहते थे, उस वक्त वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं थी, तो इसलिए वहां पे वो जो सॉवरन जो हमें जाहिरी तौर पर नजर आ रहा था वो पर से सॉवरन नहीं था, बिकॉज इट वॉज आंसरेबल टू द ब्रिटिश एम्पायर। सो क्लियरली यहां पर ऑस्टिन का दर हकीकत ये मकसद है बताने का कि हर पॉजिटिव लॉ, हर कमांड बेसिकली सॉवरन देने का मिजाज रखता है, और सॉवरन वो है जो कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी का सॉवरन है। अब यहां पे सुपरियॉरिटी के कुछ वो सेलिएंट फीचर्स बताता है कि सुपरियॉरिटी या सॉवरेनिटी दर हकीकत है क्या, और ये दोनों फीचर्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थ्योरी को समझने के लिए, बिकॉज ये थ्योरी को प्योरली एक पॉजिटिविस्ट थ्योरी क्रिएट कर देते हैं। और भी मामला है, सैंक्शन का भी मामला है, वो भी इसको प्योरली पॉजिटिविस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट सुपरियॉरिटी के साथ जो दो एलिमेंट्स लिंक्ड हैं, तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि कैरेक्टर्स हैं सॉवरन के, वो बेसिकली इस ऑस्टिन को थ्योरी को बहुत ही डिस्टिंग्विश कराती है बाकी और थ्योरीज के साथ। पहला टेनेंट क्या है, पहला एस्पेक्ट क्या है? द बल्क ऑफ द गिवन सोसाइटी इज इन द हैबिट। अब ये बल्क का लफ्ज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हैबिट ऑफ ओबीडियंस, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको आदत लगी हुई है to the submission of a determinate or common superior. That common superior may be a certain individual person or a certain body or aggregate of individual person। यानी majority of the population, उनको आदत है उस particular sovereign को follow करने में। अब ये जो दो लफ्ज हैं आपके सामने, पहला लफ्ज बल्क का है और दूसरा लफ्ज हैबिट ऑफ ओबीडियंस, इन दोनों लफ्जों को आपने बहुत ज्यादा जहन नशीन रखना है, बिकॉज ये दोनों लफ्ज हार्ट जो है इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा और उसमें एक्सप्लेन करेगा कि आदत कैसे एक प्रॉब्लमैटिक फिनोमिना है, कैसे एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है एज कंपेयर टू रूल्स। तो आदत को हमें थोड़ा सा समझना भी है, हमें उसको पहचानना भी है कि क्यों ऑस्टिन ने लोगों को एक आदत के तौर पर डाला था कानून की फॉलोइंग के अंदर। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं, जब आपको किसी चीज की आदत होती है, आपको पता भी हो कि वो अच्छी है या बुरी है, आप उसको बार बार रिपीट करते हो, आप उसकी वायरीज के ऊपर नहीं बात करते, आप उसको ये नहीं देखते कि उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। बेसिकली जब आदत होती है तो वो होती है और उसको आप फॉलो कर रहे होते हो बार बार। तो ऑस्टिन ने लॉ को पॉजिटिविस्ट रखने के लिए, प्योरली एक अपने आप को सेवर करने के लिए मोरालिटी से या इंटरनलिज्म से, या जिसको आप कह लो कि सब्जेक्टिविटी से अपने आप को अलग करने के लिए, उसने लोगों को ये इख्तियार ही नहीं दिया कि वो लोग या तो लॉ को एक्सेप्ट करें या उसको अप्रिशिएट करें या उनको पसंद करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिकॉज ऑस्टिन के मुताबिक एक सॉवरन वही सॉवरन है जब उसको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उस कानून की, उस सॉवरन की कमांड्स की में आदत में हो। इसी तरह जो दूसरा उसने एक्सप्लेन किया पॉइंट, वो कहता है ये भी सॉवरन का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसकी इलिमिटेबिलिटी की बात कर रहा है। वो कहता है दैट सर्टेन इंडिविजुअल, यानी सॉवरन का जिक्र कर रहा है, और दैट सर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। यानी वो जो पर्टिकुलर सॉवरन है वो किसी की आदत में नहीं है, ऑल्दो दैट इंडिविजुअल मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉपर पॉजिटिव moral rules and may even yield occasional submission to determinate body, but does not in habit of obedience to anyone's command। so दर हकीकत यहां पर हमें नजर आता है कि सॉवरन का जो कैरेक्टरिस्टिक है इलिमिटेबिलिटी का, वो क्या है। ऑस्टिन कहता है कि ये जो सॉवरन है ये किसी ह्यूमन अर्थली बीइंग को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उसका जवाब दे नहीं है। सॉवरन सॉवरन होगा ही तब जब वो किसी को जवाब दे नहीं है। अगर कोई भी सॉवरन सो कॉल्ड, अगर वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सॉवरन हूं और वो किसी को जवाब दे है, तो देन ही
अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज नॉट अ सॉवरन, तो फिर तो उसके पास राइट ही नहीं रहता कमांड्स को कमांड देने का। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट इसका इलिमिटेबिलिटी का, वो यहां पर एक्सप्लेन हुआ है। अब अगर हम इसी से आगे इसकी डिस्कशन करें द इलिमिटेबिलिटी के ऊपर, यानी सॉवरन इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, हमने वो पढ़ा था ना कि इफ अ सॉवरन वांट्स टू मेक अ लॉ दैट सेज किल ऑल ब्लू आइड बेबीज, तो वो लॉ भी वैलिड होगा। ये यहां पर उस लेवल की पॉजिटिविस्ट बात हो रही है कि भाई अगर कोई लॉ absurd भी हो, अनजस्ट भी हो, अनफेयर भी हो, वो भी लॉ होगा, बिकॉज क्योंकि सॉवरन एक तो लामहदूद है, लोग उसकी आदत में लगे हुए हैं कानून को फॉलो करने के लिए। लॉज विच सॉवरन इफेक्ट टू इम्पोज अपॉन देमसेल्व्स और द लॉज विच सॉवरन इफेक्ट टू इम्पोज अपॉन देयर फॉलोअर्स are merely principle or maxims which they adopt as a guide, or which they command as guides to their successors in sovereign power। तो basically वो ये कहना चाह रहा है कि जो कवानीन या जो असूल या मैक्सिम्स या प्रिंसिपल्स जो सॉवरन अपने लिए कुछ बनाता है, वो बेसिकली एक पॉजिटिव मोरालिटी है, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, और वही बात उसको बेसिकली इनलिमिटेबल क्रिएट कर रही है। बेसिकली ऑस्टिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी जिक्र कर रहा है इनडायरेक्टली। The positive morality, or the compound of positive morality and positive law, which fixes the constitution or the structure of the supreme government। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हो रहा है कि वो तमाम लॉज जो सॉवरन ने अपने लिए क्रिएट किए हैं कि लॉ बनाना कैसे है, किस टाइम पर इलेक्शन करवानी है वगैरह वगैरह, वो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज पॉजिटिव मोरालिटी। The existence of law is one thing, its merits or demerit is another. Whether it be or be not is one inquiry. Whether it be or be not conformable to the assumed standard is a different inquiry. A law which actually exists is a law, though we happen to dislike it, or though it vary from the text by which we regulate our approbation and our disapprobation. This is perhaps the most powerful statement, one of my favorite quotes from this author, John Austin. I think this sums up the entire idea of positivism कि यार आपको लॉ अच्छा लगे, आपको लॉ बुरा लगे, लोग उसको एब्रोबेट करें यानी उसको फॉलो करें या उसको ना फॉलो करें, जो एक दफा लॉ बन गया है, a law which actually exist is law, यानी जो बन गया वो अब आपको कबूल करना पड़ेगा, पसंद आए, अच्छा लगे, अज्यूम स्टैंडर्ड पे हो, उसको फॉलो किया जा सकता हो या ना किया जा सकता हो, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उस चीजों से बाला तर होकर इसने कहा कि अगर कोई भी कानून जिसमें सजा मौजूद है, वो कमांड है, वो सॉवरन ने दी है, सॉवरन को बल्क ऑफ पॉपुलेशन फॉलो करती है और वो इलिमिटेबल सॉवरन है, वो दर हकीकत एक पॉजिटिव लॉ बन जाएगा। सो इन माय ओपिनियन दिस इज परहैप्स द मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट that is given by Austin, and his theory is like इस यहाँ पर बिल्कुल कंक्लूड हो जाती है इस बात को कि वो किसी भी तरह की मोरालिटी को या इवन absurd या अनजस्ट लॉ को भी डिसरिगार्ड नहीं करेगा। वो कहेगा जी वो तो लॉ है, आपको पसंद आए ना आए, कोई उसको फॉलो करे ना करे, बेशक एक बंदा भी उसको तस्लीम करे या ना करे, वो कानून बन जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसको रिकैप कर लें, 4 चीजों के ऊपर उसने ये थ्योरी बेस की है। 4 चीजें। सबसे पहले कमांड, यानी सॉवरन ने एक कमांड देनी है, उस कमांड को, कमांड जो चीज बनाती है वो सैंक्शन बनाती है, और ये कमांड देने का इख्तियार बेसिकली एक सॉवरन का है। और सॉवरन कौन है? जिसको हैबिचुअल ओबीडियंस रेंडर की जाती है बाय द बल्क ऑफ पॉपुलेशन, और वो इन रिटर्न किसी को हैबिचुअली ओबे नहीं करता। सो बेसिकली ऑस्टिन की थ्योरी के ये जो चारों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ये हमने आपके सामने डिटेल में रखे हैं। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको रीडिंग करना असेंशियल होती है, ये कॉन्टेक्स्ट में चीजें आपको सिर्फ तब समझ आएंगी जब आप इसको रीड करोगे। द यूएल गाइड इन इटसेल्फ प्रोवाइड्स द कंटेंट ऑफ द लेक्चर्स, नहीं तो लॉयड फ्रीमैन के अंदर ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन का। आई हाईली रिकमेंड दैट एवरी लॉ स्टूडेंट जो कि जूरिस्प्रूडेंस का पेपर दे रहा है और जो इस लेवल 6 के सब्जेक्ट को समझना चाहता है या इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझना चाहता है जॉन ऑस्टिन की, वो उसके एक्चुअल जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर रीड करे बिफोर मूविंग ऑन टू HLA हार्ट। नाउ इस वीडियो के अंदर मैंने
ऑस्टिन की थ्योरी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म्स आए या जो उसके कमबैक्स हैं वो यहाँ पर सामने नहीं रखे। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो विद रिगार्ड्स टू दैट। आज की जो वीडियो थी वो सिंपली एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि ऑस्टिन की थ्योरी के अंदर वो चार कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या चार पिलर्स हैं इसकी थ्योरी के, जो कि कमांड थ्योरी को कमांड थ्योरी बनाते हैं। सो हमने वो सामने डिस्कस किए हैं। If you have any comments with regards to the discussion, please do leave a comment and do subscribe to my channel. Thank you very much for watching this.